Hello students, today we are going to see our first chapter, Introduction to Multimedia. In this chapter, we'll see all components of multimedia, usage of multimedia, types of multimedia and stages of multimedia. First of all, what is multimedia? The term multimedia has been coined from two terms, multiple and media. Multimedia means usage of multiple mediums to communicate. It is a combination of different media elements like text, audio, graphics, video, and animation. A computer capable of handling text, graphic, audio, video, and animation is sometimes called multimedia computer, right? So, what is multimedia? Multimedia is a one medium to communicate. Okay, and there are this five main multimedia components which is used to communicate or to create a multimedia project, that is text, audio, animation, video and graphics. Okay student, one more thing, we all are very much familiar with this word multimedia. Like I'm going to give you a simple example. Like in earlier time, a few years back, we all are using like a simple Nokia phone. Okay, that time हम सब बोलते थे कि लाइक हमें मल्टीमीडिया फ़ोन लाना है। और जब भी नेक्स्ट मल्टीमीडिया फ़ोन अनाउंस्ड हुआ था मार्केट में, तो वो लोग एडवर्टाइज़ करते थे, तो उसमें मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया वर्ड हमने बहुत बार सुना है। सो डिफरेंस क्या था वो सिंपल नोकिया फ़ोन में और न्यू मल्टीमीडिया फ़ोन में, कि सिंपल नोकिया फ़ोन जो पहले हुआ करता था उसके अंदर कुछ भी मल्टीमीडिया के सारे मीडियम्स यूज़ नहीं होते थे वहाँ पे। वो एक सिंपल सा एक फ़ोन था ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाला, जिसके अंदर हम लिमिटेड फंक्शन यूज़ कर पाते थे, कॉलिंग, टेक्स्ट, एसएमएस एक्सेट्रा। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स बैक, ड्यू टू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, एक नया स्मार्टफोन और सॉरी मल्टीमीडिया फ़ोन लॉन्च हुआ, जो ऑलरेडी नोकिया की और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के आते थे। उसमें क्या फ़ीचर्स जो ऐड हुआ, उस पर्टिकुलर फ़ोन में हम बहुत सी चीज़ें लाइक मल्टीमीडिया टूल्स यूज़ कर पाते थे। लाइक वी आर एबल टू यूज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग, वी आर एबल टू यूज़ लाइक वी आर एबल टू प्ले म्यूज़िक with the help of music player. Then video player will allow us to use video. Then we can also able to browse internet. We are using photo, we are capturing photos with a camera. So these all are the mediums of or components of multimedia. Okay, so that type of phone is also known as a multimedia phone. Similarly, if computer are this computer now computer are able to handle all multimedia components like text, graphic, audio, video, animation. So that's why we can call computer is a multimedia computer. Clear? Next, elements of multimedia. So we'll see one by one all important elements in a detail. Like text, it is the basic step to development of multimedia presentation. Text is used to communicate information to the user. The textual data for multimedia can be developed using any text editor. For example, OpenOffice Writer or MS Office Word. Okay, so what is text? Text is a very important and basic needs of any multimedia project, you can say, because without text you can't able to display something, right? We have to if we want to provide some information to the user, so we are using like a text format. Okay, to you can say to pass the information, okay, to display the information. The text can have a different type, color and style. A typeface is a family of characters or letter which have a similar look. Typeface have different style and size known as a font. Clear? So what is text? See, in this right side box we have written computer, computer, computer. These three types of text are different. ओके, लाइक सिंपल जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो स्मॉल है थोड़ा, उससे थोड़ा बड़ा है वो सेकेंड कंप्यूटर, फिर थर्ड कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हुआ है। दैट मीन्स ये तीनों टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल अप्लाई हुआ है। क्लियर? Styles are italic, bold, underline, and others. Size is the distance between the top of the letter to the bottom point. It is
expressed in the points. Example 12 points. व्हाट इज स्टाइल स्टूडेंट? स्टाइल मीन्स हम फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल अप्लाई करते हैं. लाइक फॉन्ट को हम इटालिक फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, उसको हम बोल्ड शो करना चाहते हैं, उसके नीचे अगर मुझे अंडरलाइन रखना है. सो ऑल दिस कम्स इन अ स्टाइल एंड वी कैन ऑल्सो एड लाइक वी हैव टू चेंज द साइज ऑफ पर्टिकुलर फॉन्ट. सो वी हैव टू सिलेक्ट लाइक हमें याद है हम वर्ड में जब वहाँ पे ऊपर फॉन्ट जो मेन्यू बार होता है उसके पास में जो रिबन है वहाँ पे हम फॉन्ट साइज जो फॉर्मेट टूल बार बोलते हैं वहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट की स्टाइल भी हम सिलेक्ट कर पाते हैं, उसका जो फॉन्ट फेस है वो सिलेक्ट कर पाते हैं, और जो पॉइंट्स होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वहाँ पे साइज़ फिक्स होता है वो हम सिलेक्ट करके अपने फॉन्ट की साइज़ बड़ा करते हैं. क्लियर? सो एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ फॉन्ट ऑफ Vardhana 16 points, then Vardhana is a style and 16 point is a size. Clear? So what is the name of Vardhana is? Vardhana is known as a style name. Okay, and 16 is what? It is a point of size. Okay, typeface is categorized into serif and sans serif. Okay, serif is a little decoration at the end of the character. Serif fonts are easy to read on a printed page, so they are usually used. Example, Times, Century, Bookman, etc. Now sans serif are without the decoration. They are usually used to headlines and titles. For example, Arial, Vardhana and Helvetica. Okay, next, audio. Now this is the second elements of multimedia, and very important. Sound is the most important elements of multimedia. The term sound is used in the analog form, and the digitalized form of sound is called audio. Okay, so normally we are recording this sound. It is by default in a analog form, then after it will convert in a digitalized form जो हम normally sound यहाँ पे यूज़ करते हैं. Nowadays computer support multimedia application. We get inbuilt sound card, speakers, microphone and web camera which are required for multimedia application. The operating system provides application that can be directly used for capturing audio and video. Okay, so nowadays we all are using like a different external sound system also, or by default sound system also. In a CPU basically comes sound card, then we are using speaker, then we are using microphone and web camera, etc. Okay, so to record a sound. Clear? And nowadays this operating system provide a application that can be directly used for capturing audio and video. Okay, so some by default softwares are already available in nowadays computer. The commonly used audio format, see these are the commonly used audio format, that is .midi, .rm, .wav, .wma, .mp3 and .mpga. So this is what the used formats, or you can say extension, right? Extension of audio file. क्लियर? नॉर्मली जब भी हम कोई भी ऑडियो फाइल देखते हैं तो वहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं जो फाइल का नाम ख़त्म होता है, फाइल के नाम में हम लास्ट में ये एक्सटेंशन देखते हैं हम, .mpga, .mp3, .wav, .rm, .midi, एक्सेट्रा. ओके, लाइक नॉर्मली जो हम अपने फ़ोन में भी हम जो सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं वो .mp3 होता है. ओके, और ये बहुत ही कॉमन है जो हमें पता है. .wa is the most popular uncompressed sound format on the internet. Okay, .mp3 is the new compressed format of फॉर रिकॉर्डेड म्यूज़िक. ओके, जो नॉर्मली हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसका जो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट सेट होता है वो .mp3 होता है, और हम ये म्यूज़िक भी जो नेट से डाउनलोड करते हैं कोई भी सॉन्ग्स वगैरह तो उसमें भी हम .mp3 एक्सटेंशन देखते हैं. नाउ थर्ड, ग्राफिक्स और इमेजेस. Photographs converted into digital form of pixel map. A map is a two-dimensional matrix of these dots. Each pixel contains value representing a color. When an image is sent to be a display on the screen, the picture data is converted to the pixels. So we all are know that the pictures कैसे बनते हैं with the help of पिक्सल्स. जो हम एक पिक्चर्स की बात करते हैं तो एक पिक्चर्स के बनने के लिए 1000 ऑफ पिक्सल्स वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं और शो होते हैं. ओके, एक सिंपल इमेजेस जो जो रहता है वो नंबर ऑफ पिक्सल से बना होता है. क्लियर? सो जब भी एंड नेक्स्ट, अनदर फॉर्म ऑफ इमेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज वेक्टर ग्राफिक्स.
कंप्यूटर जो अलग फॉर्म, एक और फॉर्म जो बनाता है उसको हम वेक्टर ग्राफिक्स भी बोलते हैं. दे स्टोर द इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस. On the screen, both bitmap and vector graphics look the same, but when you enlarge the bitmap image, it will blur. The vector images look the same when enlarged. Clear? जो bitmap images होता है वो जब हम zoom करते हैं तो वो थोड़ा blur हो जाता है, लेकिन अगर वो vector image है तो वो फिर भी same रहता है, जिसको हम high resolution image बोलते हैं और HD images बोलते हैं. This is because the data is stored in the mathematical form, and the values are recalculated when displayed on the screen. Clear? इसीलिए वो ज़्यादा क्लियर होता है क्योंकि उसके जो डेटा है वो मैथमेटिकल फॉर्म में सेव रहता है. द कॉमनली यूज इमेज फॉर्मेट आर .bmp, .gif, .png, .jpeg, .jpg, etc. Again, these are the what? These are the image or extension of image file. जनरली हम अपने जो भी कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं उसका एक्सटेंशन हम फाइंड करते हैं कि वो .jpg होता है, या तो हम पेंट में कोई फाइल रखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .png होता है, etc. Clear? Now video and animation. This is the fourth one, an important aspect of multimedia, or you can say component of multimedia, video. And next is animation. The term video refer to the sequence of natural scenes captured using analog or digital video capturing devices. Clear? These devices can be a web camera, digital camera, or even mobile phones. Animation is a visual change over time. The digital image are played one after the other to create a moving effects. Okay, let's skip. First of all, the video. What is video, student? Video is what? It is a group of imaging, nothing else. वीडियो कैसे बनता है? मल्टीपल इमेज इसको हम एक सीक्वेंस में प्ले करते हैं, एक साइड रख देते हैं और उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे फास्टली अगर मूव प्ले करते हैं एक साथ, तो उसको वैसे ही वीडियो बनता है. वीडियो कैसे बनता है? उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं. ओके, देन एनिमेशन इज़ व्हाट? ये एक कोई भी लाइव ऐसा कोई भी इमेजेस जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो, राइट? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको हम एनिमेशन बोल सकते हैं. क्लियर? Like animation is a visual change over the time. The digital images are played one after the other to create a moving effects. We can say that animation is created from drone pictures and video is created using a real-time visuals. Clear? एनिमेशन इज़ अ क्रिएटेड फ्रॉम ड्रोन पिक्चर्स. ओके, जो हम डिज़ाइन करते हैं कुछ एडिटेड पिक्चर्स पे हम एनिमेशन बनाते हैं, और वीडियो वो है हम कोई भी वीडियो शूटिंग करते हैं इमेजेस से हम वीडियो रखते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमेशन मूवीज आर कुंग फू पांडा, द एंग्री बर्ड्स. राइट, हमने एंग्री बर्ड्स मूवी भी देखी है, गेम भी खेले हुए हैं. राइट, एनिमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ 2 डायमेंशनल, दैट इज़ अ 2D, और 3 डायमेंशनल, दैट इज़ अ 3D. ओके. Now, in a 2D animation, the visual change occurs on the X and Y axis of the screen. This type of animation is a simple, like a Micromedia Flash, Cinefix Studio, and Pencil. These are the name of software which allow you to create a 2D animation. Okay, so what is 2D animation? भी एक simple moving object created images होते हैं जिससे हम एक simple animation बना सकते हैं, जो हम सीखेंगे next chapter में. हमारे syllabus में Cinefix Studio नाम का एक software है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और वो हम सीखेंगे उस टाइम पे कि बेसिक लाइक मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल, वो सारे एनिमेशन हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं. दैट इज़ अ 2D एनिमेशन. एंड देर आर एग्जाम्पल माइक्रोमीडिया फ्लैश, सिनफिक्स स्टूडियो एंड पेंसिल आर दी 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर. ओके, देन in 3D animation, the visual change occurs along 3 axes, namely X, Y, and Z. This type of animation give almost a realistic view of the images. Now 3D words is very popular nowadays. Like 3D images is what it is. It's show you like a real pictures or real scene of anything. Like most of the time, this architect, engineers, and doctors, and in many fields, this 3D images are used. Okay, so it is the best way to show your product, because it's give a real feelings or real view of 360-degree view of the particular product. Okay, so it is more reliable or understandable. The commonly used video format are .avi,
.wmv, .mpeg, .flv and .mp4. Again, this is the extension of saving video file. Okay, different extension is used at the different place. Nowadays mp4 is most widely used format for the internet video. इट इज़ सपोर्टेड बाय फ्लैश प्लेयर एंड यूट्यूब वीडियो. यूट्यूब पे जो हमें वीडियोस मिलते हैं उसका बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो .mp4 होता है. ओके. Now, interactive objects. What is the interactive objects? Earlier, the internet browser supports only one media elements, text. Okay, text was also limited to a single font and color. But nowadays, all the media elements supported by latest internet browser in a different way. Some media elements can be handled inline and some required plugins. Inline media objects are specified inside the program using a specific inline media object tag. Okay, and plugins are the extra helper program that can be easily installed and used as a पार्ट ऑफ दी वेब ब्राउज़र. अब ये प्लगइन्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से या किसी रिलेटेड अगर हमारा ब्राउज़र कोई प्लगइन्स मांग रहा है, मीन्स कोई एडिशनल सेटिंग्स वहाँ पे करना होता है, उसको हम प्लगइन्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र नाउअडेज ऑल ब्राउज़र सपोर्ट बेसिकली कॉमन ऑल दिस प्लगइन. नो नीड ऑफ लाइक दे डोंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ प्लगइन्स, बट इन सम केसेस they demand. Okay, so that time we have to install it separately. Okay, next, now multimedia classification. Okay, multimedia is divided in a two types, that is interactive multimedia and non-interactive media. Okay, it is very the word say itself, right? In interactive multimedia, the sequence and timing of media elements can be controlled by the user. Simple. In an interactive multimedia, वी कैन इंटरफियर इन दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा वहाँ पे इंटरेक्शन होता है. अगर मुझे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मोबाइल में कोई मूवी देख रहा हूँ और मुझे मन है तो मैं मूवी के अंदर मूवी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बैकवर्ड कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ. कोई सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद आया तो उसको बार बार सुन सकता हूँ. सी, दिस इज़ वॉट दिस इज़ कॉल्ड अ इंटरेक्शन. ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अ मल्टीमीडिया सीरीज और on learn musical instruments, the user can select on a different musical instrument he she want to play. For example, मैंने अगर आपको एक मल्टीमीडिया एक सीडी दिया और उसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का कुछ ट्यूटोरियल्स है, तो अगर आप चाहो तो उसको कितनी बार भी प्ले करो. आपको जो पर्टिकुलर म्यूज़िक सीखना है वो पर्टिकुलर म्यूज़िक सीखो. आपको जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्ले करना है, मल्टीपल टाइम प्ले करना है, पॉज करना है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे चेंजेस करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. दैट काइंड ऑफ मल्टीमीडिया इज़ नोन एज अ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. user can also select his favorite song which he she want to play using that instrument. Okay, so means यहाँ पे पूरी चीज़ें जो हमारा प्रोजेक्ट है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट वो हमारे कंट्रोल में होता है. क्लियर. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम आगे मैं बताऊंगा आपको. नेक्स्ट, in non-interactive multimedia, the user simply watches the media as it plays from beginning to the end. He she has no control over the flow. For example, a corporator presentation or a multimedia demo. Another classification of multimedia is based on its application, entertainment or edutainment. Let it be later on. First, non-interactive multimedia. Now, non-interactive multimedia, interactive multimedia क्या था कि जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती थी. हम जब चाहे जो चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं. बट यहाँ पे ऐसा होता है नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज़ नॉट अलाउ यू टू इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट और इंटरप्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक हम जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, राइट, तो वो एक टाइप का एक वन टाइप ऑफ इट इज़ नॉन इंटरेक्टिव मीडिया. हाउ इट्स हैपन. फॉर एग्जाम्पल, हमें जो मूवी दिखाते हैं वो स्टार्ट करते हैं एंड तक, राइट. उसमें वो जिस हिसाब से हमें शो करते हैं हमें वो कंटिन्यूसली देखना पड़ता है. हम वहाँ पे अपने हिसाब से डिमांड नहीं कर सकते आप ये पर्टिकुलर सॉन्ग अच्छा है आप इसको रीप्ले करो, या ये अच्छा नहीं इसको फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड करो. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल कि जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन अलाउ नहीं करता है. जैसे कि हम कोई भी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं या कोई पे हमारी ट्रस्टी मीटिंग्स है, तो हमें उस टाइम पे हमें सिर्फ सुनना होता है कि जो वो हमें बोल रहे हैं वो हमें फॉलो करना है, सुनना है. वी कांट इंटरप्ट इन इट. क्लियर. और वी कांट डिमांड फॉर एनीथिंग ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर.
Then all types of games movies are example of entertainment multimedia. Sorry, okay, well, the point is another classification, अभी हमने देख लिया इंटर में, sorry, interactive and non-interactive. Now another classification of multimedia is based on its application, entertainment or edutainment. नाउ एंटरटेनमेंट वर्ड से पता चल रहा है लाइक ऑल गेम्स मूवीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया वेर इन द पर्पज इज टू एंटरटेन द यूजर, नथिंग एल्स. एंटरटेनमेंट मीडिया इज just the main purpose is to entertain the user by playing games, showing movies, etc. Okay, the multimedia titles that educate the user are classified under edutainment multimedia. Okay, all types of educational CDs are example of education multimedia. Okay, so ये जो एक क्लासिफिकेशन है वो पर्टिकुलर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड का एजुकेशन का हो. फॉर एग्जांपल हमारा कोई क्लासेस का हो या हम कोई एक गाइडेंस वीडियो बना रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी एक एजुकेशन पर्पस के लिए है. क्लियर. नाउ यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया आप देखते हैं कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ होता है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट. सिंपल जो हम अभी कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्मार्ट क्लास है, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया. इस क्लासेस में जो ट्रेडिशनल हमारा क्लास है, जो नॉर्मल क्लास हम क्या करते हैं, क्लासरूम में हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं और वहाँ पे टीचर्स होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है. सो वो हमारा एक ओल्ड पैटर्न था आप कह रहे हो, या जो हमारे पास करंट सिचुएशन पे, अब जो करंट सिचुएशन पे हमारा ऐसा है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी ऑल आर गोइंग टू लर्न नाउ ऑनलाइन. Like teachers are taking online classes, creating PPT file, creating videos. So the way of teaching is changed now, right? So this is also an example of multimedia. So education and training में बहुत बड़ा important role है this multimedia का. We have been using presentations consisting of charts, table and other objects to impart knowledge since a long time, right? नाउ ट्रेनिंग में, एजुकेशन में आपको समझ में आ गया, लाइक हम जो स्मार्ट क्लास जैसे कि ब्लैक बोर्ड है हमारा, उसको हमने अभी स्मार्ट बोर्ड बना दिया है. फिर हम नॉर्मली पहले पढ़ाते थे सिर्फ एक हमारे पास बुक्स होते थे, बुक्स से ही हमें पढ़ना है, बट हम स्टूडेंट्स को हम लोग पीपीटी पे भी एक्सप्लेन कर देते हैं. फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो हमने कोई एनिमेशन वीडियो बता दिया उसको अच्छे से समझने के लिए. सो ये सारे एक तरीका जो बदल गया है एजुकेशन का विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया, राइट. नाउ ट्रेनिंग पर्पज़ पे भी इट इज़ वेरी यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना है हमें, तो हमने एक ट्यूटोरियल दे दिया, शो कर दिया. जैसे कि अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट देखना है, कुछ मुझे समझना है ये मशीनरी कैसे काम करती, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेता हूँ और देख लेता हूँ. सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ट्यूटोरियल विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया. लाइक डॉक्टर्स को अगर हमें कुछ बताना है, ट्रेनिंग देना है, तो डॉक्टर्स के लिए जो उनके सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या तो उनके लिए एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और प्रैक्टिकल सेक्शन बता देते हैं कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. तो वो सारी चीज़ें भी मल्टीमीडिया के थ्रू ही होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर. देन एडवर्टाइजमेंट्स, राइट. एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मेन, हमने ये मल्टीमीडिया वर्ड मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे ही सुना है, राइट. एडवर्टाइजमेंट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ launching and promoting a product by the manufacturing companies in the market. Example Vodafone ads, right. अभी ये जो ज़्यादातर जो एनिमेशन वगैरह जो अप्लाई होता है वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस पे भी हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, सॉरी, जिसमें हम अलग अलग ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, वीडियो एड बनाते हैं, ऑडियो एड्स बनाते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोडाफोन एड्स, तो वोडाफोन एड्स में हमने देखा है जूजू, जो पहले हम मोस्टली आईपीएल जब आता था तो वो जुजू का एड स्पेसिफिकली वो लोग शो करते थे, राइट. उसमें कार्टून्स होते हैं जो कुछ भी शो करते हैं. लाइक इट्स स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्टिंग है वो भी कम हो चुका है, बिकॉज अब कार्टूनिस्ट वाले एड्स हम ज़्यादा देखते हैं, जिससे क्या होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी कम लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ भी बनता है, तो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट. तो वो भी एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट हुआ, जैसे कि वोडाफोन में जूजू यूज़ होता है. फिर वो पग नाम का जो डॉग का एक ब्रीड है छोटा सा, लाइक वेर एवर यू गो वी फॉलो, लाइक जो उनका टैग है. सो दिस आर दी टैग ऑफ और द मोड ऑफ मल्टीमीडिया, और विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया दे आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट. नाउ एंटरटेनमेंट पर्पस, मल्टीमीडिया इज heavily used in the entertainment industries to develop a special effects in animation and movies.
फॉर एग्जाम्पल आइस एज, जुरासिक पार्क एंड अवतार, राइट. मुझे याद है अवतार इज़ द, आई एम टेलिंग, बेस्ट मूवी, एनिमेटेड मूवी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी स्पेशली. और यू नो दिस आर दी मेन एनिमेटेड मूवी, हाईली एनिमेटेड मूवी. इसके अंदर एनिमेशन का एकदम हाई लेवल का एनिमेटेड यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस रखा हुआ है. आप एक मोस्टली हम सब ने ये देखा ही हुआ है, जुरासिक पार्क, अवतार और आइसबर्ग एज. तो ये जो मल्टीमीडिया है और एनिमेशन है वो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी यूज़ होता है, जो हम जनरली देखते ही हैं मूवीज़ वगैरह में भी. आपने देखें जो एक्शंस मूवी होते हैं, राइट, एक्शंस मूवी, दे ऑल आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द मल्टीमीडिया टूल्स. नाउ journalism, right? There are many magazines and newspaper that are published periodically. E-magazines are also available online where we can see the videos related the particular news. Now अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम न्यूज़पेपर सिर्फ हम एक हार्ड फॉर्मेट में जो हमारे घर पे आता था वैसे ही पढ़ते हैं, राइट. वी आर नाउ गेटिंग ऑल न्यूज़पेपर, ऑल थिंग्स इन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट, सो वी आर एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, राइट. So they have also started using multimedia in their industry. Okay, next. Now stages in a multimedia products. Any multimedia presentation must be carefully planned, and the design and a plan should be according to the field selected. For example, an application made for entertainment may not work with an educational application and vice versa. What it says, like stages, multimedia production मतलब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेजेस बताए गए हैं जो बहुत ही यूज़फुल है. इफ़ वी कैन फॉलो ऑल दिस स्टेजेस seriously, then we are able to make a genuine or perfect multimedia projects. Okay, so for example यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन को एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया है तो उसको आप एजुकेशन पर्पस से या एजुकेशन एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लाइक वो इमेजेस, वो ऑडियो या वो वीडियो. क्लियर? इट इज़ सिंपल. नाउ फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन अ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन. लेट्स सी. रिसर्च एंड एनालिसिस. फर्स्ट, रिसर्च एनालिसिस मीन्स अगर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट, बनाने हैं. तो देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट, रिसर्च एनालिसिस. वर्ड से ही पता चल रहा है हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के पहले हमें कुछ रिसर्च करना पड़ता है और एनालिसिस करना पड़ता है कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है जिसके लिए आप बना रहे हो, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तो प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल्स है क्या है. मीन्स बहुत सी चीज़ें आती है रिसर्च एनालिसिस में. वी नीड टू फाइंड आवर अबाउट द ऑडियंस, देयर स्किल्स, नीड्स एंड क्वालिफिकेशन, राइट. मीन्स हमें ऑडियंस के बारे में भी जानना ज़रूरी, किस टाइप के ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे, इस इमेज को देखेंगे या ये मल्टीमीडिया टूल को देखेंगे. फिर उसमें क्या स्किल्स ज़रूरी है वो देखना है, उसकी मेन ज़रूरत क्या है, नीड्स क्या है वो देखना है. फिर क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स क्या देना है वो देखना है. वी शुड ऑल्सो गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड. हमें मैक्सिमम कंटेंट कलेक्शन करके पहले रिसर्च करके रखना पड़ता है कोई भी मीडिया प्रोडक्शन बनाने के लिए. नाउ सेकेंड, स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग. Now scripting and flow charting means deciding the flow of the multimedia project. For example, multimedia projects on a science for a standard 11th, the homepage would display all the chapter names, explanation, exercise, टेस्ट एंड अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दी चैप्टर. ओके, तो स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग. अब हमें फिर डिसाइड करना पड़ता है, एक बार अगर रिसर्च एनालिसिस हो गया तो हमें एक फ्लो डिसाइड करना पड़ता है कि स्क्रिप्ट डिसाइड करना पड़ता है, कौन से स्क्रिप्ट कौन सी चीज़ के बाद क्या डिस्प्ले करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ऊपर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो किस फ्लो में शो करेगा. एवरीथिंग वी हैव टू प्लान प्रॉपरली while before creating the multimedia project. Now third one is a storyboarding. Okay, storyboarding. Now actual visualization of the project take place. अब तक जो हम कर रहे थे सिर्फ हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे. अब हम एक्चुअली में वो जो प्रोजेक्ट को विजुअलाइजेशन मीन्स कंप्यूटराइज करेंगे हमारे मल्टीमीडिया को, वो तो यहाँ पे हमें देखना है. नाउ एक्चुअल विजुअलाइजेशन of the project take place. The designer decides how its screen should look like,
which media elements are to be used and where to place them on the screen. जो हमारा मेन डिज़ाइनर होगा, जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा स्क्रीन कहाँ पे रखना है, कौन से वीडियो कहाँ पे रखने, कौन सा इमेजेस इसको रिलेट कर पा रहा है, कौन सा वीडियो, कौन सा एनिमेशन. सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी वेल प्लान्ड एंड वेल डिजाइंड. देन दिस प्रोफेशनल डिज़ाइनर will take place. This professional designer will do needful for creating a perfect multimedia project. Now fourth, collection of media elements and construction, right? The designer is ready with the prototype and start creating a graphics and other media elements to be used to the project. Now programming is the next important stage. After the collection and construction of media elements, they are combined together in a final product using software packages, right? ये सारे जो आगे के 3 और 4 स्टेजेस हो गए, कलेक्शन एंड मीडिया एलिमेंट्स का कंस्ट्रक्शन. मीडिया एलिमेंट्स उसने बना लिए, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस. अब उसको उसने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया, फ्लो चार्ट डिसाइड हो गया कैसे वो काम करेगा, एवरीथिंग सब होने के बाद जो प्रोग्रामर का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि अब इसको एक दूसरे के साथ कनेक्शन लिंकअप कैसे करना है, राइट? टाई अप कैसे करना है, इमेजेस वीडियो पे कैसे रिलेटेड होगा, वीडियो में कौन सा एनिमेशन शो, सॉरी इमेज में कौन सा एनिमेशन शो करना है, वीडियो पहले आएगा, इमेज पहले आएगा. ऑल जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ प्लगइन्स और जॉइंट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ कोड जो प्रोग्रामर करेगा, राइट? Now the next and a final stage, that is a testing. You know, testing is a very important stage of any project. यहाँ पे जो लाइव हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट वो कितना सक्सेसफुल है और कितना नहीं. सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एनी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. इन दिस स्टेज वी चेक इफ ऑल मीडिया एलिमेंट्स आर वर्किंग एज पर दी रिक्वायरमेंट और नॉट. क्लियर? सो यहाँ जो फाइनल स्टेज है, जो आगे जो भी 5 स्टेज में काम हुआ, वो छठे स्टेज में हम टेस्ट करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फिलफिल हो रही है कि नहीं, जो हमारा डिमांड था इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. मीन्स वी हैव, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गॉट सम प्रोजेक्ट, right? If you got some project from a client, right? So we have to see like all requirement of that particular client is fulfilled in our project, in our software, in our multimedia project. And before launching that software or before hand over that software or presentation, or you can say multimedia project to a customer, to a client, before that we have to test it, right? Now we have to test it. हमें चेक करना पड़ता है all components are working properly or not, its all requirements are fulfilled or not. Clear? I hope you all are clear. If we see, student, if we work as per the stages mentioned here, the most of the applications that we may develop will turn out to be a good. अगर हम ये सारे 6 stages follow करते हैं seriously, professionally, then हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है वो एक कंप्लीट और इफेक्टिव है, राइट? सो आई होप ये चैप्टर में आपको क्लियर हुआ होगा. मल्टीमीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है इट इज़ क्लियर है. अगर आपको डाउट है तो हमें आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में हम वो शो करेंगे. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.